Good morning, class. So, yesterday we discussed the qualities of an ideal questionnaire and in the construction of questionnaires and schedules. And today we will be discussing the types of questions that are asked in a particular questionnaire. So, there are four types of questions that are asked in a particular questionnaire. The first one is the simple alternative questions. See, these questions are answered in yes or no, right or wrong, and good or bad. For example, do you have a car? Yes or no. See, if for a particular situation there are only two alternative situations like of yes or no, of right or wrong, good or bad, true or false. So in that case, the questions asked is the simple alternative questions. If we ask any question that has only two alternatives, that is yes or no, or right or wrong, or good or bad, then that is known as the simple alternative questions. Multiple choice questions, where there are various possibilities of a particular event, multiple choice questions are generally asked. See, if there are more than one outcome or there are one more than one alternative situation for a particular event, then what we do, we keep multiple choices for the respondent, and the respondent can choose any option that is suitable for him, that suits him, and he can take that particular option. For example, what is a mode of conveyance from home to college? There may be many modes of conveyance, so we will use multiple choice questions over here, like on foot, cycle, bus, scooty. And we can also add some more options, like if there are some more options, then that can also be added over here. It is not compulsory that you will have only four options in a multiple choice question. Next is specific information question. Only specific information is obtained through such questions. Example, in which class do you read? Okay, so if we want to take any specific type of information from the respondent, like in which class do you read, or in which school do you read, or in which city do you belong, so the answer here is very specific, and you have to give the exact answer over here. Okay, and also the answers of some people is going to match, like 10, all the 10th standard students are going to write 10th, and 11th standard students are going to write 11th. So there is no any difference and a major difference in the answers or the responses. Okay, uh, the answers we get are very specific. Okay, you have to just mention the specific information in these answers, so these are known as the specific information questions. And the last is open questions. In such questions, the informant is requested to give his views on specific issues. If the informant is asked to give his opinion on a specific issue, and the opinion of people are different from each other, then these are known as the open questions. Example, how can prices in India be controlled? So the people will give their opinions, different opinions on this particular question, that how can prices in India be controlled. So there are four types of questions asked in a questionnaire, that is simple alternative questions, multiple choice questions, specific information questions, and the last is the open questions. Now coming to the methods of collecting the secondary data. See, till now we were studying that how we can collect the basic data, primary data, or principal data we can say, and we have studied all the methods of collecting the primary data. Now we will start with the methods of collecting the secondary data. Secondary data, as we know, is the data that is already been collected by someone else, and we obtain that data from that particular person to conduct our study, then that is known as the secondary data. Okay, so there are two main sources of collecting the secondary data. First is the published sources, and second is the unpublished sources. Published sources means where the data that is being printed somewhere, these those are known as the published sources. We have data in the printed form, and if it is not printed
anywhere and we collect the data orally or in any other form from some other person, then it is known as the unpublished sources. So what are the published sources? Means if the sources in which the data is being printed. See, the data can be printed offline as well as online. In today's world, the data, the secondary data availability on internet is very wide, because most of the articles, magazines, newspapers you can read online. So the data can be published either online or offline. Okay, so what are the sources of published data, or what are the published sources of secondary data? So the first one is international publications. UNO, IMF, World Bank and governments of different countries publishes a number of journals and periodicals which are the best source of secondary data or national as well as international facts and figures. See, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या दूसरी कंट्री की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या करती हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा डेटा होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, तो उनके पास सारी कंट्रीज़ के बारे में डेटा अवेलेबल होता है। IMF क्या करता है, IMF फंडिंग प्रोवाइड करता है ट्रेड के लिए, और डिफरेंट कंट्रीज़ को वो फंड्स प्रोवाइड करता है। सो उसके पास जो है वो डेटा होता है ट्रेड से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड। सो ये सारा डेटा IMF जो है वो पब्लिश करती है, एंड वर्ल्ड बैंक के पास, UNO के पास जो भी डेटा होता है वो सब सारा कुछ पब्लिश होता है। हमने देखा होगा कि सब बहुत सारा डेटा जो है वो UNO जो है वो डेटा पब्लिश करती है, अपना IMF पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है एक बुलेटिन में। सो दीज ऑल डेटा आर पब्लिश्ड by these international institutions, and also the government of different countries publish their data about their particular country. So this data is very useful for collecting the national as well as international facts and figures, and this data is very reliable also because it is being published by the international institutions as well as the government. Okay, so this data is very reliable. तो हमें अगर कोई भी इंटरनेशनल फैक्ट्स या फिगर्स के बारे में जानना है, नेशनल फैक्ट्स या फिगर्स के बारे में जानना है, देन वी कैन ईजिली नो दैम फ्रॉम द इंटरनेशनल पब्लिकेशंस दैट आर द पब्लिकेशंस ऑफ UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड द डिफरेंट गवर्नमेंट्स. ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. से ये तो हमारे इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे थे, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. अगर हमें अपनी ही कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, वो पब्लिश करती हैं स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा को वो पब्लिश करती हैं रूटीन बेसिस पे. एंड ये जो डेटा वो पब्लिश करती है वो रिलायबल होता है, अगेन क्योंकि ये गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है. और जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में, उसको कितना उसका आउटपुट है, कितनी उसमें ग्रोथ हो रही है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में उसको पूरी डेटा उसके पास अवेलेबल होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास में. सो दे पब्लिश दैट डेटा, एंड वो एनुअल सर्वे करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में क्या ग्रोथ हो रही है, कितना उनका आउटपुट है, कितना जो है वो कितने रेट से वो ग्रो कर रहे हैं. ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे पब्लिश करती हैं, कितना प्रॉफिटेबल है, कौन सी इंडस्ट्री की क्या स्टेटस चल रहा है इकोनॉमी में. ये सब डेटा वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में पब्लिश करती हैं. RBI बुलेटिन की बात करें तो RBI भी जो है वो एनुअली अपना बुलेटिन या ब्रूचर एक टाइप का होता है, उसको वो पब्लिश करती है, जिससे जो भी लोग हैं कंट्री में वो ईज़िली इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. अपने जो भी इकोनॉमी की बारे में इंफॉर्मेशन है वो उनको ईज़िली मिल सकती है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, और जो भी रेट चल रहा है, डिफरेंट रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट होती है. तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस क्या होती हैं, जितनी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा को पब्लिश करती है डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में इकोनॉमी के, वो हमारे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आ जाता है. नाउ इंटरनेशनल और नेशनल इंफॉर्मेशन के बाद में हमें कुछ
पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, देन वी विल गो टू द सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। जितनी भी हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इनके पास बहुत सारा डेटा होता है हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बर्थ से, डेथ से रिलेटेड। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं हमेशा म्यूनिसिपैलिटीज़ में। सो उनके पास जो भी उनके एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन कवर्ड होती है, उनके पास ये सारा डेटा होता है, तो वो उसको भी पब्लिश करते हैं, एंड ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है सेकेंडरी डेटा का। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो बहुत सारी कमिटीज़ एंड कमीशंस को अपॉइंट करती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। जैसे फाइनेंस कमीशन बनाती है, मोनोपोलीज कमीशन बनाती है, प्लानिंग कमीशन बनाती है, यानी गवर्नमेंट के जितने भी प्लानिंग का वर्क होता है वो प्लानिंग कमीशन करती है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सब जो है वो फाइनेंस कमीशन देखती है। मोनोपोली कमीशन का मतलब है कि मतलब मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर चीज़ को ओन कर रही है। जैसे रेलवेज़ है तो उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, सिर्फ गवर्नमेंट ही रेलवेज़ को रन कर सकती है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंडर में या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही किसी चीज़ को रन कर रही है तो उसके पास उसकी मोनोपोली होती है, सेंट्रल पावर हम कह सकते हैं उसके पास होती है। तो ऐसी मतलब चीज़ों जो एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखने के लिए भी एक कमीशन अलग से फॉर्म की जाती है बाय दी गवर्नमेंट। तो ये जितनी भी कमिटीज़ या कमीशंस गवर्नमेंट बनाती है वो भी अपना डेटा पब्लिश करते हैं ऑन रेगुलर इंटरवल्स। एंड दी फिफ्थ वन इज़ कमर्शियल रिसर्च, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में सारे सोर्सेज दे रखे हैं। लाइक कमर्शियल रिसर्च का मतलब हमारा क्या है, कमर्शियल का मतलब क्या है, जितने भी हमारे कंपनीज़ हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में जो रन कर रही हैं वो अपनी मतलब जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उससे रिलेटेड डेटा वो पब्लिश करती हैं हर ईयर। अपनी एनुअल रिपोर्ट को वो पब्लिश करती हैं जिसमें वो अपनी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट सब चीज़ें शो करती हैं। सो दैट इज़ नोन एज द कमर्शियल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। एंड वहाँ पे वो अपना सारा जो भी डेटा होता है वो एनुअल रिपोर्ट्स में पब्लिश कर देती हैं कंपनीज़। रिसर्च का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कोई रिसर्च कर रहा है तो वो अपनी रिसर्च में जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको किसी आर्टिकल में पब्लिश कर सकता है, किसी बुक में पब्लिश कर सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिसर्च वगैरह होती है या वहाँ अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वो डेटा को पब्लिश करते हैं। जितनी भी हमारी यूनियंस होती हैं वो भी अपने डेटा को पब्लिश करती हैं। यूनियंस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो साथ में आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना फॉर्म कर लेते हैं। जैसे जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस क्या कहती है कि वो आपस मतलब एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ की एक यूनियन बन जाती है जो आपस में ट्रेड करती रहती है। या फिर हमारे लेबर यूनियन होती है कि जितने भी लेबर्स होते हैं वो साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उससे सॉल्व करते हैं। तो ये जो यूनियंस होती हैं वो भी डेटा को पब्लिश करती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी डेटा को पब्लिश करती हैं। सो these are also a source of secondary data. and the last one is journal and papers. अगर हम journals and papers की बात करें तो बहुत सारे journals क्या होते हैं, journals हमारे न्यूज़पेपर्स हम कह सकते हैं जो क्वार्टरली, मंथली या ईयरली, हाफ ईयरली पब्लिश किए जाते हैं। एंड हमारे जो पीरियोडिकल्स अभी हमने पढ़े थे, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, पीरियोडिकल्स मैगजीन्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रिंट की जाती हैं। तो बहुत सारे जर्नल्स होते हैं और पेपर्स या फिर मैगजीन्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रिंट की जाती हैं। यहाँ न्यूज़पेपर का एग्जांपल दे रखा है जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स। एंड आप कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश, हिंदी, वो जो है वो सोर्स होता है सेकेंडरी डेटा का। एंड
यहाँ पर एक मैगज़ीन का एग्जाम्पल दे रखा है, कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू। यू कैन राइट एनी ऑफ द मैगज़ीन यू नो, बिकॉज दैट इज़ अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी मैगज़ीन पढ़ते हो तो आप वहाँ से डेटा कलेक्ट ईजिली कर सकते हो, अगर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें हमें जो है वो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन easily available होती है. Okay, so these were all the published sources of secondary data. The unpublished sources we will cover in our next lecture. That's all for today. Thank you.